Preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise previous questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIB. देखिए क्रेडिट रिस्क क्या होता है, जो डिफॉल्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर, उसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अब यहाँ पर बैंक तो करता ही क्रेडिट है, चाहे वो फंड बेस्ड हो चाहे नॉन फंड बेस्ड हो। फंड बेस्ड कौन सा होता है, जैसे कि टर्म लोन हो गया, सीसी लिमिट हो गई, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, ये सभी आपके पास फंड बेस्ड है। एंड नॉन फंड बेस्ड कौन से है, जैसे बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट होगी, ठीक है, एंड फर्दर इसके अलावा को एक्सेप्टेंस लेटर होगी, ये सभी नॉन फंड बेस्ड है। अब फंड बेस्ड के केस में तो डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड्स होता है, लेकिन जो नॉन फंड बेस्ड होता है उसके केस में डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने नॉन फंड बेस्ड दिया तो आज के आज ही पैसे आपको देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब वो लायबिलिटी क्रिस्टलाइज होगी, क्योंकि वो कंटिंजेंट फॉर्म की लायबिलिटी होती है उसमें, तो जब वो लायबिलिटी क्रिस्टलाइज होगी उस केस में आपको यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज अ क्रेडिट रिस्क ओवर देयर। तो उसी को हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। उसके रिलेटेड जो रिस्क रहेगा कि हाँ डिफॉल्ट हो सकता है, दिस इज टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क ओवर देयर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे हमने मार्केट रिस्क की बात करी थी ना, उसके केस में भी यहाँ पर हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसके केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। फिर हमारे पास बोर्ड लेवल सब कमेटी, दैट इज आरएमसी, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो गया। फिर हमारे पास सीपीसी रहता है। इस केस में हमारे पास देखिए सीपीसी रहता है। ध्यान रखेंगे कि जब क्रेडिट रिस्क के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात होती है तो उसके केस में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मेरे पास आरएमसी रहती है यानी कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रहती है। देन इट इज द केस ऑफ द सीपीसी, दैट इज अ क्रेडिट पॉलिसी कमेटी हो गया, यानी क्रेडिट पॉलिसी कमेटी होती है जिसमें डिफरेंट जो फंक्शनल हेड्स होते हैं ना वो यहाँ पर होते हैं। एंड फर्दर वो कॉमन डिसीजन लेते हैं पॉलिसीज के हिसाब से कि जो लोन है उसे सैंक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज अ सीपीसी ओवर देयर। दैट इज अ सीआरएमडी ओवर देयर, दैट इज अ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ओवर देयर। तो बोर्ड का फंडा तो आपको पता ही है कि ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी किसकी रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि जो भी रिस्क है वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही मैनेज किए जाएंगे। एंड जो बोर्ड है वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है किस चीज को, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को आर्टिकुलेट करता है। जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, एग्रीगेट लिमिट सेट करता है, टॉलरेंस लिमिट सेट करता है, उनको रिव्यू करता है, जो भी नई पॉलिसी होती है उनको रिव्यू करता है, जो पुरानी पॉलिसी होती है उनको रिव्यू करता है, उसमें चेंज करने वाला है वो भी करता है। तो ये सारा इंपैक्ट किसके पास है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करता हूँ तो ये गाइडलाइंस को सेटअप करना, ठीक है, एंड फर्दर उनके साथ कंफर्म करवाना कि वो पॉलिसीज को फॉलो किया भी जा रहा है कि नहीं करना किया जा रहा, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल लिमिट्स के बारे में बात करना एंड रोबस्टनेस चेक करना सिस्टम की, ये सारा का सारा काम किसका है, ये आरएमसी का यानी कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम है। ओके, फर्दर थर्ड चीज आती है जैसे क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखिए क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जब भी कोई लोन सैंक्शन होता है तो उसके रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। एंड क्रेडिट प्रपोजल्स को सैंक्शन करने का प्रोसेस, कोवेनेंट्स को देखने का प्रोसेस, रेटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ये सारा काम क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के पास रहता है, ठीक है। एंड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ओवर देयर, ये यहाँ पर कंप्लायंस को एंश्योर करता है। देखिए इस चीज को एंश्योर करता है कि जो रिस्क पैरामीटर्स हैं, जो पोटेंशियल लिमिट सेट की गई हैं सीपीसी के द्वारा, क्या उनके साथ कंप्लाई किया जा रहा है। एंड फर्दर उनके साथ कंप्लाई करना जरूरी है, ये सीआरएमडी यहां पर बनाता है। एंड साथ के साथ पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कतें दिखती हैं तो उनको यहां पर देखना एंड फर्दर रिपोर्ट करना, वो भी इनके पास काम है। एंड फर्दर इसके साथ एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को सेट करना, वो भी सीआरएमडी का काम है। ओके, देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो मैनेज किस तरह से कर सकते हैं क्रेडिट रिस्क को। सबसे पहली चीज तो रहती है कि हम क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाए कि क्रेडिट रिस्क पर्टिकुलरली कौन कितना है, कौन कौन सी टाइप का क्रेडिट रिस्क प्रेजेंट है उसके बारे में। फर्दर उसकी क्वांटिफिकेशन यानी कि उसको मेजर करना कि एक्चुअल में क्रेडिट रिस्क जो है वो यहाँ पर कितना रिस्क, अमाउंट वाइज कितना रिस्क है। फिर उसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल की बात करती है, फिर उसकी मिटिगेशन की बात करती है। जब हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्रेडिट रिस्क की डिफरेंट टाइप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहली टाइप है यहाँ पर
जो इसमें आता है हमारे पास डिफॉल्ट रिस्क। अब डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है, जब आपने एक पार्टी को लोन दिया एंड वो पार्टी यहाँ पर डिफॉल्ट कर देती है, अपना लोन पे नहीं करती है, उसको हम क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं, या फिर उसको हम इन जनरल डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। फर्दर फिर बात आती है कि डाउनग्रेड रिस्क या क्रेडिट स्प्रेड रिस्क के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये डेफिनेशन। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क या फिर जो डाउनग्रेड रिस्क होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी पार्टी को लोन दिया था एंड फर्दर उसकी रेटिंग जो थी पहले वो A+ थी या ट्रिपल ए थी, ठीक है, एंड बाद में अब इसकी जो रेटिंग है वो यहाँ पर ट्रिपल ए से रिड्यूस होकर सिंपल ए रह गई है, ठीक है, डबल ए भी नहीं रही, ए रह गई है। तो यहाँ पर पहले जब आपने इसको लोन दिया था उस टाइम पर इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड था, क्योंकि रेटिंग काफी अच्छी थी, रिस्क एसोसिएटेड काफी ज्यादा कम था उस टाइम पे। लेकिन अब यहाँ पर लेट्स से आफ्टर 1 ईयर जो यहाँ पर जो इसके साथ क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है वो यहाँ पर क्या हो गया, वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जो रिस्क है वो इंक्रीज हुआ है। अब ये नहीं कि डिफॉल्ट करेगा करेगा, क्रेडिट रेटिंग कम हो गई इसका मतलब ये नहीं होता कि डिफॉल्ट करेगा करेगा, इवन ट्रिपल ए वाला भी डिफॉल्ट कर सकता है, हो सकता है कि डी वाला भी डिफॉल्ट ना करे, ओके। सो दैट इज अ केस रिलेटेड। लेकिन डेफिनेटली अब एक अप्रोच तो रहती है ना कि हाँ ए रेटिंग है तो यहाँ पर इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कम है तो इसके डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो चीज यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगी, दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड, ओके। फिर उसके बाद आता है पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क होता है जैसे एक तो चीज आप देखते हो पूरे के पूरे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, जो यानी कि जो सिंगल लोन आपने सैंक्शन किया, जो सिंगल लोन आपने सैंक्शन किया, एक तो आप उसके ऊपर देखते हो। एक होता है कि जब आप पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में जितने भी रिस्क हैं, एक पूरे पोर्टफोलियो में जितने भी रिस्क हैं, आप उन सभी रिस्क को मिला करके देख रहे हो कि पोर्टफोलियो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के लेवल के ऊपर कितना रिस्क है यहाँ पर, दैट इज अ पोर्टफोलियो रिस्क हो गया। फिर आती है बात यहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क या फिर इंट्रिंसिक रिस्क के बारे में, ठीक है। जो पोर्टफोलियो है चाहे आपने डाइवर्सिफाई भी किया हो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या रहता है, अब अगर एक ब्रांच है वो सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन कर रही है, अगर हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट्स में ड्यू होना शुरू हो गया, ठीक है, तो उसके केस में डेफिनेटली ब्रांच डूब जाएगी। एंड फॉर द लेट्स से एक यहाँ पर ब्रांच है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेंडिंग कर रही है, किसको लेंडिंग कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेंडिंग कर रही है एंड और किसी भी सेक्टर को लेंडिंग नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई यहाँ पर उलटफेर हुई तो डेफिनेटली वो ब्रांच डूब जाएगी, ठीक है। तो उस चीज में यहाँ पर चेंज करने के लिए, उस चीज में यहाँ पर चेंज करने के लिए किया क्या जाता है कि जो ब्रांचेस होती हैं, जो बैंक होता है, वो सिर्फ एक तरह की लेंडिंग नहीं करता, वो थोड़े बहुत एजुकेशन लोन, थोड़े बहुत कॉर्पोरेट लोन, थोड़े बहुत रिटेल लोन एंड सभी चीजों का मिक्स करता है, ताकि यहां पर एक चीज बनी रहे, एक रिस्क जो है वो यहां पर फैल जाए, एक ही जगह पर ना बना रहे, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी डाइवर्सिफिकेशन। वो कहते यहां पर सिस्टमेटिक रिस्क के केस में कहा गया चाहे आपने डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो लेवल पर कर रखी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसमें सिस्टमेटिक रिस्क हो। सिस्टमेटिक रिस्क है यानी कि पूरे सिस्टम का रिस्क है, यानी कि अगर इकोनॉमी ही डाउन हो गई तो आपका पोर्टफोलियो क्या कर लेगा। जैसे कोविड-19 आया, पूरी जब इकोनॉमी ही डाउन चली गई तो उस टाइम पर चाहे आपने किसी भी सेक्टर में लैंडिंग की हो वो यहां पर फेल हो ही रही थी, ठीक है। तो वो कौन सा रिस्क है, इंट्रिंसिक रिस्क इसको कहते हैं, या फिर इसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। फर्दर कंसंट्रेशन रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क क्या होती है, अब जैसे मान लो कि मैं 1000 पर्सन को, 1000 पर्सन को 1 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर देता हूं, 1 करोड़ का लोन जो है मैंने 1000 पर्सन को सैंक्शन कर दिया, एक तो ये है। एंड फॉर दूसरा केस क्या है कि मैंने 1 करोड़ का जो लोन है वो यहां पर एक ही पर्सन को सैंक्शन कर दिया। अब यहां पर 1000 में से कितने परसेंट डिफॉल्ट करेंगे, लेट से यहां पर 200 पर्सन ने डिफॉल्ट कर लिया, फिर भी पूरा अमाउंट तो नहीं डूबा ना। यहां पर अगर एक ही पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो हमारा डूब जाएगा। तो ये जो रिस्क है दैट इज अ कंसंट्रेशन रिस्क ओवर देयर, क्योंकि लोन जो है वो कंसंट्रेटेड है, तो यहां पर जो रिस्क होगा दैट विल बी द कंसंट्रेशन रिस्क ओवर देयर, वो कंसंट्रेशन रिस्क यहां पर रहेगा, राइट। ये चीज यहां पर क्लियर होगी। फिर होगा काउंटर पार्टी रिस्क। अब जिस पार्टी के साथ डील कर रहे हो अगर उसकी नॉन परफॉर्मेंस होती है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो वो कौन सा होगा, दैट विल बी द काउंटर पार्टी रिस्क ओवर देयर। देन फॉर द कंट्री रिस्क, अब कंट्री रिस्क क्या है, यहां पर एक पर्सन जो है वो एक कंट्री में, दूसरा पर्सन जो है वो दूसरी कंट्री में है। अब पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल तो करना चाहता है, यानी कि वो विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है, वो डिफॉल्टर तो नहीं है, लेकिन वो यहां पर अपनी कंट्री की इंपोजिशन, अपनी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बन गए हैं उनकी वजह से यहां पर वो पर्टिकुलरली पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन सा रिस्क हो गया, कंट्री रिस्क हो गया, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे रिस्क के बारे में, ठीक है, यानी कि रिस्क की जो टाइप होती है उसके बारे में बात होगी, जिसमें हमने टाइप्स कौन कौन सी पढ़ी, हमने यहाँ पर पढ़ा डिफॉल्ट रिस्क के बारे में, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क या फिर जिसको हम डाउनग्रेड रिस्क कहते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क एंड फर्दर हमने कंसंट्रेशन रिस्क एंड कंट्री रिस्क, इन सभी रिस्क के बारे में पढ़ा। नॉट रिलेटेड टू द रिस्क मेजरमेंट, कि हम रिस्क को मेजर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि हम क्रेडिट रेटिंग के थ्रू या क्रेडिट स्कोरिंग के थ्रू देख सकते हैं कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है एक सिंगल पार्टी के साथ, सिंगल बोरोर के साथ, या फिर जो रिस्क होता है वो एक्सपेक्टेड लॉसेस के थ्रू, यानी कि एक्सपेक्टेड जो अपने लोन दिया उसमें एक्सपेक्टेड लॉसेस कितने हो सकते हैं उसके थ्रू यहां पर देख सकते हैं कि कितना यहां पर लॉस हो सकता है। सबसे पहले बात करने वाले क्रेडिट रिस्क रेटिंग के बारे में, यानी कि आपने यहां पर किसी बोरो को रेटिंग दी, अब वो रेटिंग जो है अगर डाउनग्रेड हो जाती है तो पर्टिकुलर रिस्क होगा, जैसे कि हमने यहां पर स्प्रेड रिस्क के बारे में पढ़ा या फिर डाउनग्रेड रिस्क के बारे में पढ़ा, वही सेम चीज है ना यहाँ पर,
वही सेम चीज है, दैट इज अ थिंग रिलेटेड। तो वो रिस्क यहाँ पर किसके साथ एसोसिएटेड होगा, दैट इज पर्टिकुलरली क्रेडिट रेटिंग रिस्क ओवर देयर। एंड उसके थ्रू हम यहाँ पर जायजा ले सकते हैं कि कितना रिस्क था एंड फर्दर किस तरह से हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद आती है क्रेडिट रिस्क मॉडल ओवर देयर। क्रेडिट रिस्क मॉडल क्या होता है कि यानी कि डिफरेंट बोरोज होते हैं, डिफरेंट बोरोज के साथ डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलरली एसोसिएटेड होता है। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना, मान लीजिए मेरे पास 5 बोरो है, B1 B2 B3 B4 एंड B5 एंड B4 एंड B5 ओवर हियर। अब ये 5 बोरोज हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पर इनके साथ एसोसिएटेड जो रिस्क होगा वो सेम होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड होगा। तो डेफिनेटली इनसे जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ वो भी डिफरेंट होगी, क्योंकि हम कौन सी मेथोडोलॉजी को अपनाते हैं, हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल को अपनाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर रिस्क अलग अलग है तो इसके केस में, बोरोर के केस में यहाँ पर जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर अलग अलग होगी। एंड फॉर इसमें क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। रेवेन्यू जनरेशन में क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट बोरोज है, तो कोई पर्सन डिफॉल्ट कर देगा, कोई नहीं करेगा। तो डेफिनेटली डिफॉल्ट का यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना हुआ है रेवेन्यू जनरेशन का, वो यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, वो यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने किसी पर्सन को रेटिंग दी हुई है ए, एक पर्सन को रेटिंग दी है A+, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये मतलब नहीं है कि A+ रेटिंग है तो वो पर्सन डिफॉल्ट नहीं करेगा, इवन वो पर्सन भी यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन इसी तरह से अगर इसकी रेटिंग जो है यहाँ पर रिड्यूस होकर B हो जाती है, तो डेफिनेटली इसके साथ जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी थी वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दैट इज अ थिंग रिलेटेड। तो एक सिंपल सी चीज को समझिएगा कि जो रेटिंग होती है उसका प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। रेटिंग का ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर रेटिंग जो है ज्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, या रेटिंग कम होगी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क को देखते हो कि इस पर्सन के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क क्या है, उसके हिसाब से आप पर्टिकुलरली डील करते हो। तो रेटिंग माइग्रेशन जो होता है ना वो इसी के साथ डील करता है, रेटिंग माइग्रेशन जो होता है इसके साथ डील करता है। तो यहां पर कहा गया कि आपके पास बोरोर है मेसर्स XYZ लिमिटेड is rated B+ on its position on 31st of March 2019 over there, and further कंपनी को 31 मार्च 2020 को फिर से रेटिंग करी गई है, एंड इस बार इसकी जो रेटिंग थी वो यहाँ पर B हो गई, यानी कि पहले रेटिंग B+ थी, अब यहाँ पर B हो गई है, यानी कि डाउनग्रेड हो गई है, रेटिंग क्या हो गई है, डाउनग्रेड हो गई है। तो यहाँ पर एक साल के पीरियड में जो रेटिंग माइग्रेशन है, दैट रेटिंग हैज बीन माइग्रेटेड फ्रॉम द B+ to B over here, दैट इज द रेटिंग माइग्रेशन ओवर देयर। यही पर्टिकुलरली कौन सा केस है, दिस इज अ रेटिंग माइग्रेशन केस ओवर हियर। तो यहां पर देखिएगा आपके पास सिनेरियो है कि आपके पास जो रेटिंग थी, लास्ट रेटिंग पहले ए थी 200 अकाउंट्स की, अब यहां पर जो प्रेजेंट रेटिंग है, दो अकाउंट्स की रेटिंग यहां पर A++ है, यानी कि दो की अपग्रेड हो गई है एंड A++ में आ गई है, दो की अपग्रेड हो गई है A+ में, एंड 158 अकाउंट्स स्टिल ए कैटेगरी में है, एंड 20 अकाउंट्स डिग्रेड हो गए टू द B+ कैटेगरी, एंड 8 अकाउंट्स डिग्रेड हो गए बी कैटेगरी में, एंड C अकाउंट्स डिग्रेड हो गए C कैटेगरी में, एंड 4 अकाउंट्स में यहां पर डिफॉल्ट भी हो गया है। तो यहां पर ये क्या है, दिस इज द रेटिंग माइग्रेशन ओवर देयर, दिस इज द रेटिंग माइग्रेशन ओवर देयर। अब यहां पर अगर मुझे डिफरेंट ईयर्स के बारे में मुझे यहां पर पता होगा कि रेटिंग किस तरह से मूव हुई है, तो अगर मुझे पता होगा कि डिफरेंट ईयर्स में मैं देखा कि A+ वाले जो बंदे हैं वो कहां पर यहां पर मूव किए हैं, या फिर उसमें से कितने लगभग डिफॉल्ट हुए हैं, अगर मुझे इन चीजों के बारे में पता लग जाए, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता लग जाए, तो डेफिनेटली आई कैन गेट एन आइडिया कि A+ में इतने केसेस हैं तो इतना अमाउंट आपका डिफॉल्ट हो सकता है, तो इतना अमाउंट आपका लगभग जो है वो यहाँ पर डिफॉल्ट हो सकता है। डेफिनेटली वो चीज मुझे यहाँ पर पता लग सकती है, वो चीज के बारे में हम आइडिया यहाँ पर ले सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द रेटिंग माइग्रेशन ओवर देयर। तो रेटिंग माइग्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये बेनिफिट रहता है। फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रेटिंग मॉडल, अब यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो भी आप रेटिंग मॉडल करते हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए कि जो भी सभी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं, वो सभी रिस्क ड्राइवर जो है, रिस्क पैरामीटर्स हैं, क्या उनको यहाँ पर ध्यान में रखा हुआ है रेटिंग करते हुए, यानी कि पास्ट कंडक्ट कैसा था, मैनेजमेंट कैसी है, फाइनेंशियल्स क्या है बिजनेस के, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज कर सकते हैं, क्या उन सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया। एंड फर्दर क्या जो आपने रेटिंग मॉडल बनाया है वो मार्केट के स्टैंडर्ड के साथ खरा उतरता है। ठीक है, दैट इज द थिंग रिलेटेड इट। एंड फर्दर इसके बाद ना एक स्कोर हम करने वाले हैं, दैट इज द ऑल्टमैन जेड स्कोर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्टमैन जेड स्कोर से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फर्म है आने वाले टाइम में वो बैंकरप्ट होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बारे में पता लग जाता है। तो ये जेड स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं। जेड स्कोर जो है वो 5 यहाँ पर रेशियोज के ऊपर बेस्ड है, क्या है, 5 रेशियोज के ऊपर बेस्ड है। एंड फर्दर इसको याद रखने का क्राइटेरिया क्या है, 1.2 1.4 3.3 0.6 एंड 1, ये लिख लेना सबसे पहले, इस चीज को क्रैम कर लो, 1.2 1.4 3.3 0.6 1 ओवर दिया, एंड फर्दर इसके साथ लिख दो A B C D एंड E ओवर दिया, एंड साथ में ऐड कर देना, ये तो सिंपल सी बात होगी, ना, दैट इज कैलकुलेशन फॉर्मूला फॉर द जेड स्कोर ओवर दिया। लेकिन ABCDE क्या है, ABCDE जो है ये 5 डिफरेंट रेशियोज है, पहली रेशियो जो है दैट इज वर्किंग कैपिटल टू द टोटल एसेट्स ओवर दिया,
वर्किंग कैपिटल टू द टोटल एसेट्स ओवर देयर। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल के एसेट्स से आपके पास कितनी रेशियो है टोटल एसेट्स की रेशियो में, आपके पास वर्किंग कैपिटल जो है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर, दैट इज द रेशियो ए ओवर देयर। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर होगी, ज्यादा होगी, तभी आप बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे ना, तो जितनी पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा बेटर है। एंड फॉर द सेकंड है रिटेन्ड अर्निंग्स ओवर टोटल एसेट्स, यानी कि टोटल एसेट्स के पीछे आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, ये भी जितनी ज्यादा होगी उतनी बेटर होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा होगी उतनी बेटर होगी। तीसरा है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी कि आपकी टोटल एसेट्स के पीछे आप अपने एसेट्स को कितने बेटर वे में यहां पर यूज कर रहे हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, अर्निंग बनाने के लिए। एंड फर्दर दिस इज आल्सो, जितना ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। जो फोर्थ आपकी रेशियो है वो उसके बेस में ना उसके लाइबिलिटीज आएगी, यानी कि उसके आपके पास डी के केस में ना आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में लाइबिलिटीज आएंगी। तो डी का क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज, मार्केट वैल्यू ऑफ आपके पास जो है इक्विटी की टोटल लाइबिलिटीज के पीछे वो कितनी है, ठीक है, यानी कि अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, किसके बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कंपनी की, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलरली मार्केट वैल्यू ऐड करती है मॉडल में, ठीक है, दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट, दैट इज द थिंग रिलेटेड, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय द टोटल लायबिलिटीज ओवर देयर। एंड अगर ई की बात करते हैं उसके केस में भी आपके पास टोटल एसेट्स है, आपकी सेल्स कितनी है टोटल एसेट्स के विषय, दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट। तो यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि ए किसके बारे में, एक चीज मुझे पता लगी है, मैंने यहां पर लिख लिया ए बी सी डी ई। अब एक चीज पता लगी कि यहां पर ए के केस में डिनोमिनेटर टोटल एसेट्स है, बी के केस में डिनोमिनेटर टोटल एसेट्स है, सी के केस में टोटल एसेट्स है, डी के केस में टोटल लायबिलिटीज है, एंड ई के केस में अगेन टोटल एसेट्स है, राइट। एंड पहली जो रेशियो होती है वो मेरे किसके बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में। दूसरी जो है वो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में, यानी कि कितनी रिटेन कर रहा हूं उसके बारे में। तीसरी जो है वो ईबीआईटी के बारे में। एंड ये जो फिफ्थ है यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में। एंड जो मेरे पास यहाँ पर सॉरी फोर्थ जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में। एंड जो फिफ्थ है ये मेरे पास सेल्स के बारे में, दैट इज द थिंग रिलेटेड। अब ये यहाँ पर लिखिए, इसके आगे इंडेक्स तो मैं लिख ही सकता हूँ, दैट इज 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1 ओवर दिया, एंड 1 ओवर दिया, एंड सिर्फ इनको ऐड कर देना, दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट। अब इसमें से यहाँ पर 1 2 3 4 ये वाली, ये जितनी ज्यादा होंगी उतनी बेटर है, ये जितनी ज्यादा होंगी उतनी क्या है, बेटर रहती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो टोटल लायबिलिटी का मार्केट वैल्यू है वो पर्टिकुलर रहता है कि मार्केट वैल्यू मुझे एस्टैब्लिश करनी है उसके बारे में, राइट। तो यहाँ पर दैट इज रिलेटेड टू द ऑल्टमैन जेड स्कोर। ये किसके रिलेटेड है, यहाँ पर ऑल्टमैन जेड स्कोर से रिलेटेड है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, फर्दर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहाँ पर आपके पास ईबीआईटी दिया गया, आपके पास टोटल एसेट्स दिया है, टोटल लायबिलिटीज दी गई है, रिटेन्ड अर्निंग्स दी गई है, वर्किंग कैपिटल दी गई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दी गई है। सेल्स जो है वो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से आपको अभी बता देता हूँ कि वो 10 लाख है। लेट्स से द केस कि जो सेल्स है वो 10 लाख की है, राइट। तो यहाँ पर ए रेशियो अगर मैंने कैलकुलेट करनी है तो ए रेशियो क्या रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग कैपिटल कितनी है, दैट इज 5 लाख ओवर दिया। तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने 20 है, 20 लाख है ना, तो डिवाइडेड बाय 20 हो गया, प्लस 1.4 बी रेशियो जो होती थी वो किससे, रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड है। रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है 10 है, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 20 ओवर दिया। एंड फर्दर थर्ड जो रेशियो थी दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट, that was related to the EBIT यानी कि earning before interest and tax, that is 5 lakh again, so it is 3.3 multiplied by 5 lakh divided by 20 over there, plus 4 जो था that was market value of equity, that is 30 lakh divided by total liabilities, that is equal to 10 lakhs over there, multiplied by 0.6 plus 1 multiplied by जो था sales था, sales को मैंने 10 lakh माना, 10 lakh divided by total assets, that is equal to 20 over there। and further इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि हमने ऑल्टमैन जेड स्कोर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आसानी से देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आती हैं। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.48। तो पहली केस आ गई 0.48 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.7 ओवर देयर। एंड फर्दर थर्ड केस रहेगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 that is equal to 0.825 and for the third case बन गया हमारे पास 3 into 0.6 that is equal to 1.8 over here plus हमारे पास बन गया 0.5 over here। अगर हम इसका टोटल लगा के देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, it comes out to be 0.48 plus 0.7 0.48 plus 0.7 plus 0.825 plus 1.8 plus 0.5 over there, that is 4.305, that is 4.305। दिस इज द टोटल जेड स्कोर जो वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट की है। ओके, अब अगर यहां पर जेड स्कोर जो है, अगर यहां पर जेड स्कोर जो है वो यहां पर 3 से कम होता है तो उसका मतलब होता है दो चीजें निकलती हैं। अगर तो 1.8 तक है, ध्यान से देखिएगा, अगर तो 0 से 1.8 तक है तो इसका मतलब है फ्यूचर बैंक्रप्सी होगी।
तो अगर यहाँ पर वैल्यू जो है वो जेड की 0 to 1.8 के बीच में, तो फ्यूचर बैंक्रप्सी होगी। अगर 1.8 से 3 के बीच में, तो ग्रे एरिया के बीच में, यानी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। एंड अगर ग्रेटर देन 3 है तो उसके केस में बैंक्रप्सी नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 से ज्यादा है तो हमारी जो फर्म थी यहाँ पर वो बैंक्रप्ट नहीं होगी। तो दैट वाज रिलेटेड टू द ऑल्टमैन जेड स्कोर। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे एंड आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, राइट। जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो। एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। इट्स रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू जेपी मॉर्गन मॉडल। तो जेपी मॉर्गन मॉडल भी क्रेडिट मैट्रिक्स से रिलेटेड है, यानी कि इसके केस में कहता है वॉलिटिलिटी जो होती है वैल्यू ऑफ एसेट्स के केस में हमने वो रिमूव करनी होती है। यानी कि जब हम यहां पर क्वालिटी के बारे में देखें, एसेट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, एसेट्स होते हैं हमारे पास। अब यहां पर अगर हम एसेट की क्वालिटी को मेंटेन कर लें, उसके केस में जो वॉलिटिलिटी आ रही है, यानी कि जो मेरे को यहां पर ऊपर नीचे वैल्यू दिख रही है, उसको डेफिनेटली मैं कम कर सकता हूं ना। उसको डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट? दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द वॉलिटिलिटी थिंग ओवर देयर, एंड दैट वाज एक्चुअली द क्रेडिट मैट्रिक्स ओवर देयर, राइट। एंड जो यहाँ पर तीसरा मॉडल, दैट इज अ क्रेडिट रिस्क प्लस मॉडल ओवर देयर। तो क्रेडिट रिस्क प्लस जो मॉडल है, ये क्रेडिट रेटिंग मॉडल है जो कि डेवलप किया गया था क्रेडिट स्विस के द्वारा, क्रेडिट स्विस के द्वारा, एंड एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। सिर्फ इतना याद रखिए, दैट इज द रिलेटेड थिंग ओवर देयर। एंड ये किसके ऊपर बेस्ड है कि आप यहां पर जो भी एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट रेट होती है उसको कैलकुलेट करते हो, एंड फर्दर जो भी अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं आपके डिफॉल्ट से उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है क्या चीज? क्रेडिट रिस्क प्लस बेस्ड है। तो क्रेडिट रिस्क प्लस जो है, यहां पर लिख देता हूं, काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। तो क्रेडिट रिस्क प्लस जो है, दैट इज पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल मॉडल जो कि क्रेडिट स्विस ने यहां पर डिफाइन किया, एंड दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहला है कि एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट रेट कितनी होगी, क्या होगी? एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट रेट जो होगी वो कितनी होगी, पहली चीज ये है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड आपके लॉस कितने हो सकते हैं यहां पर डिफॉल्ट से। अनएक्सपेक्टेड आपके जो लॉस हो सकते हैं डिफॉल्ट से वो कितने यहां पर हो सकते हैं उसके बारे में। तो अगर यहां पर दो चीजें आपको पता है तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल का यूज करते हुए हम इसको क्रेडिट रेटिंग मॉडल की तरह यहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। So that would be related to the credit risk plus over there. Further, it's related to the standard and guidelines over there. तो standard and guidelines में एक तो कुछ आप क्रेडिट रिस्क को खत्म करना चाहते हो ना अगर, तो कुछ एक स्टैंडर्ड्स बना लो, उसके साथ भी क्रेडिट रिस्क को खत्म कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है डेलीगेशन ऑफ पावर। अब ऐसा तो नहीं है कि स्केल 1 जो है, क्रेडिट ऑफिसर स्केल 1 जो है, वो कितना भी लोन सैंक्शन कर देगा, उसको कुछ पावर दी गई है, इतना लोन तुम सैंक्शन करोगे, नहीं तो हायर अथॉरिटी से सैंक्शन करवाओगे। तो इसके थ्रू डेफिनेटली हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है कि जितना ज्यादा जिसके पास यहां पर एक्सपीरियंस होगा वो उतना ज्यादा बेटर लेंडिंग कर सकता है। दैट इज द थिंग टू रिलेटेड। फॉर द क्रेडिट अप्रेजल करते हुए ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो आपकी स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज हैं उनको यहां पर फॉलो कीजिएगा, रेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स को फॉलो कीजिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना है कि प्राइसिंग किस हिसाब से करनी है। अगर ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है तो ज्यादा यहां पर प्राइसिंग होगी, अगर कम रिस्क एसोसिएटेड है तो यहां पर कम यहां पर प्राइसिंग होगी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द लोन रिव्यू मैकेनिज्म ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं लोन रिव्यू मैकेनिज्म के बारे में। सो मेन ऑब्जेक्टिव लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्या होता है कि हमने ऐसे जो भी लोन जिसमें केस में हमारे पास वीकनेसेस अवेलेबल है, वीकनेस का मतलब है जहां पर आपको डिफॉल्ट के साइन देखने को मिल रहे हैं या करेक्टिव एक्शन लेने को मिल रहा है, आप उन सभी लोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आप यहां पर उनको आइडेंटिफाई करने के बाद इवेल्युएट करेंगे कि आपकी पोर्टफोलियो की टोटल क्वालिटी कैसी है, एंड फर्दर जो भी पोटेंशियल रिस्क होंगे, प्रॉब्लम एरियाज होंगे, उनको आप आइसोलेट कर लेंगे, यानी कि उनको अलग कर लेंगे। लेट्स से देखिए कि मेरे पास यहाँ पर 100 लोन्स थे, 100 में से 4 लोन मुझे ऐसे देखे जिसमें ना यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट साइंस थे कि हाँ इसमें डिफॉल्ट हो सकता है। मैंने इन 4 के 4 लोन्स को अलग कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया इनको, ठीक है। एंड फर्दर आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है उसके बारे में देखूंगा, जो भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है उसके बारे में देखूंगा। एंड साथ ही साथ मुझे लोन्स के लिए क्या मेंटेन करनी होती है, मुझे लोन्स के लिए यहाँ पर प्रोविजन को मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रोविजन को मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पर प्रोविजन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं करी है, अगर मैंने यहाँ पर प्रोविजन मेंटेन नहीं करी है, तो उसके केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिपोर्टिंग करनी चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अपर अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी चाहिए कि हाँ ये प्रोविजन जो है पर्टिकुलरली मेंटेन नहीं की गई है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाई गए हैं उनके साथ भी मुझे कंप्लाई करना है, एंड टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करनी है। दैट इज द मेन थिंग ऑफ द एलआरएम ओवर देयर। ओके, दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द एलआरएम ओवर देयर। फिर आती है बात सबसे एंड में हमारे पास क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन की। तो मिटिगेशन करने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है, एक तो है कि आप देखो टॉलरेंस लिमिट्स, ये वो पॉलिसीज को अपनाओ, ये तो चीज है ही है, ठीक है। साथ के साथ क्या है कि हम यहाँ पर पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर ना क्रेडिट डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम एसेट सिक्योरिटाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम पोर्टफोलियो के ऊपर, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर जो भी यहाँ पर क्रेडिट रिस्क है उनको यहाँ पर लोअर डाउन कर पाए। अब इन्हीं यहाँ पर डेरिवेटिव्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो डेरिवेटिव पर्टिकुलरली होता क्या है? डेरिवेटिव पर्टिकुलरली होता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। डेरिवेटिव की खुद की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज एक्चुअली डिराइव्ड,
इसकी वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली डिराइव होती है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट ओवर देयर। जो भी अंडरलाइंग एसेट होता है वहां से इसकी वैल्यू को डिराइव किया जाता है, वहां से इसकी वैल्यू को डिराइव किया जाता है। दैट इज अ डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया। एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड, एक होते हैं आपके पास ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर बेस। ठीक है, तो एक तो मेरे पास होता है सीडीएस। क्या होता है सीडीएस? सीडीएस क्या होता है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ओवर देयर। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ओवर देयर, यानी कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो यहां पर मेरा ओवरराइट हो रहा है, काइंडली प्लीज लेट मी चेंज इट। तो अगर मेरी तरफ से यहां पर बोरो की तरफ से डिफॉल्ट हुआ तो जिस पर्सन को मैं यहां पर प्रीमियम पे कर रहा हूं, रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा हूं, वो यहां पर मेरे लॉस की भरपाई करेगा। वो क्या करेगा? मेरे लॉस की भरपाई करेगा। दैट इज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ओवर देयर। इसी को हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं, राइट? ये चीज क्लियर होगी है। अब इसके केस में एक प्रोटेक्शन बायर होगा जिसके पास एसेट एक्चुअल में पड़ा है, जिसके पास एसेट एक्चुअल में पड़ा है, एंड एक होगा प्रोटेक्शन सेलर। एंड ये प्रोटेक्शन बायर जो होगा ये रेगुलर प्रीमियम पे करेगा इसको, प्रोटेक्शन सेलर को। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इवेंट प्रोटेक्शन सेलर यहां पर कंपनसेट करेगा प्रोटेक्शन बायर को। ओके, एंड ये जो कंपनसेशन होती है ना, एक तो नॉशनल बेसिस के ऊपर होती है, दूसरी जो कंपनसेशन है वो यहां पर किसके बेस पर हो सकती है? दैट कैन बी बेस्ड अपॉन द, जो यहां पर फिजिकल सेटलमेंट के बेस पर हो सकती है। एक तो कैश बेसिस सेटलमेंट होती है, एक आपकी फिजिकल सेटलमेंट बेसिस होती है। एंड ये जो डिफॉल्ट इवेंट दिए गए आईएसडी ने डिफाइन किया। ये आईएसडी यानी कि इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन जो है, उन्होंने यहां पर ये 6 डिफॉल्ट इवेंट्स डिफाइन किया है। बैंक्रप्सी का केस हो सकता है, ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन का केस हो सकता है। ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन कब होगी? लेट्स से केस यहां पर एक बोरोर है एंड इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवानी थी जो कि करवा नहीं रहा। अब बड़ी बार यहां पर नोटिस भेज चुके हैं लेकिन इसने जमा नहीं करे। आपने नोटिस निकाल दिया कि सारा का सारा पैसा जमा करो, तो ये क्या हो गया? ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि ऑब्लिगेशन इसकी थी ना, इसने पे ऑफ करना है, तो वो तो इसने इंस्टॉलमेंट्स में करना था, लेकिन इसने अपने यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं निभाई है, तो उसकी वजह से आपने एक्सेलरेट कर दिया कि सारा का सारा लोन जमा करो। ठीक है, ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट हो सकता है, यानी कि डिफॉल्ट कर दिया पार्टी ने, ये भी हो सकता है। फेलियर हो सकता है कि पे करने में फेलियर हो रहा है, वो भी केस हो सकती है। या फिर रेप्यूटेशन हो सकती है, यानी कि जो पर्सन है वो यहाँ पर रेप्यूटेट कर रहा है कि मैंने तो लोन वापस नहीं करना, उसके केस में। या फिर रिस्ट्रक्चरिंग करिए, उसके केस में हो सकता है कि पर्सन ने फिर से डिफॉल्ट कर दिया हो। तो इन सभी केसेस में यहाँ पर जो प्रोटेक्शन सेलर है वो यहाँ पर क्या करेगा? वो यहाँ पर कंपनसेट करेगा प्रोटेक्शन बायर को, वो यहाँ पर कंपनसेट करेगा प्रोटेक्शन बायर को। सो दैट इज द सिनेरियो। सो दैट इज द सिनेरियो रिलेटेड टू द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ओवर देयर। अब सेटलमेंट की बात कर रहे थे। सेटलमेंट दो तरह की हो सकती है, एक तो आपके पास फिजिकल सेटलमेंट होती है, एक आपके पास होती है कैश सेटलमेंट ओवर देयर। जो फिजिकल सेटलमेंट होती है ना वो ज्यादा कॉमन है। वो क्या है? वो पर्टिकुलरली ज्यादा कॉमन है। यहां पर जो प्रोटेक्शन बायर होता है ना, जो प्रोटेक्शन बायर होता है वो पर्टिकुलरली असाइन कर देता है जो भी यहाँ पर रेफरेंस एसेट होता है। ये एसेट के ऊपर यहाँ पर मान लीजिए इसने यहाँ पर प्रोटेक्शन लेनी थी, तो ये रेफरेंस एसेट को यहाँ पर असाइन कर देगा। किसको? प्रोटेक्शन सेलर को इस रेफरेंस एसेट को यहाँ पर असाइन कर देगा। ठीक है, एंड फॉर द नोशनल अमाउंट जो वो रिसीव करता रहेगा, यानी कि अमाउंट जो होगा एसेट का वो यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर के पास जाएगा सीधा का सीधा। एंड फॉर द प्रोटेक्शन सेलर जो अपना प्रीमियम कट करके अमाउंट जो होगा, नोशनल अमाउंट जो होगा, वो यहाँ पर देता रहेगा किसको? प्रोटेक्शन बायर को देता रहेगा। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली द फिजिकल सेटलमेंट, जो कि फिजिकल सेटलमेंट होती है। अब कैश सेटलमेंट के केस में क्या होता है? कैश सेटलमेंट के केस में ना, जो यहाँ पर एसेट है वो प्रोटेक्शन बायर के पास ही रहेगा। प्रोटेक्शन बायर को कोई पर्सन यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कोई पर्सन जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेटिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा? एक कैलकुलेटिंग एजेंट होगा। वो यहाँ पर देखेगा कि कितना लॉस हुआ, कितना यहाँ पर डिफॉल्ट हुआ। उसके केस में जो भी नोशनल अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा पे करने के लिए, एंड वो अमाउंट होगा वो यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर को पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है किसके केस में? कैश सेटलमेंट के केस में एंड फिजिकल सेटलमेंट के केस में। आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द क्रेडिट लिंक्ड नोट्स ओवर देयर। अब क्रेडिट लिंक्ड नोट्स का क्राइटेरिया समझ लीजिए, काफी इजी सा क्राइटेरिया। देखिए, आपको सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होना चाहिए। सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन का मतलब जो है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि सिक्योरिटाइजेशन के केस में प्रोसेस एक्चुअल में फॉलो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से द केस कि यहाँ पर एक बैंक है एबीसी, एंड इस बैंक के पास ना यहाँ पर हाउसिंग लोन है जो कि मॉर्गेज बैग है, एंड फॉर द इन सभी में एनपीए चल रहा है, इन सभी में एनपीए चल रहा है। तो यहां पर इसने अपने जो लोन थे ना वो यहाँ पर एनपीए थे, ये इसने सेल कर दिए। यहाँ पर एक एक्सवाइजेड यहाँ पर बैंक था, इसको सेल करते, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इसने सेल कर दिया, राइट। अब यहाँ पर इन एसेट्स के बेस के ऊपर, इन एनपीएस के बेस के ऊपर यहाँ पर जो एक्सवाइजेड बैंक है ना वो यहाँ पर क्या करेगा? वो यहाँ पर पास थ्रू सर्टिफिकेट, यानी कि जिनको हम पीटीसी कहते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट जो है उनको यहाँ पर ये क्या करेगा? इशू करेगा। अब जनरल इन्वेस्टर जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे? इन पीटीसीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इन पीटीसीज को रेटिंग की जाएगी, इन पीटीसी की रेटिंग करी जाएगी, एंड जो इन्वेस्टर्स होंगे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी बैंक को, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी बैंक को। एंड फर्दर जो यहाँ पर रिटर्न आती रहेगी,
जो यहाँ पर इन लोन से रिटर्न आती रहेगी उस, क्योंकि यहाँ पर एक्सवाइजेड जो होगा यहाँ पर रिकवरी भी करेगा, तो यहाँ पर जो रिटर्न आती रहेगी उस रिटर्न से यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट मिलती रहेगी, उनको यहाँ पर पेमेंट मिलती रहेगी। सो दिस इज द केस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन, ये हमारे पास सिक्योरिटाइजेशन का केस रहता है। अब क्रेडिट लिंक्ड नोट्स में क्या चीज होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब क्रेडिट लिंक्ड नोट्स के केस में हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है कि एक होता है प्रोटेक्शन बायर, एक होता है प्रोटेक्शन सेलर ओवर देयर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो प्रोटेक्शन बायर है, जो प्रोटेक्शन बायर है वो अपने रेफरेंस एसेट्स को यहाँ पर सेल कर देता है, किसको, वो यहाँ पर अपने रेफरेंस एसेट्स को देता है, यहाँ पर लेट्स से प्रोटेक्शन सेलर को दे दिया, ठीक है। अब प्रोटेक्शन सेलर जो होगा वो यहाँ पर इस एसेट के बेस के ऊपर, इन एसेट्स के बेस के ऊपर यहाँ पर क्रेडिट लिंक्ड नोट्स को इशू कर देगा, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स को इशू कर देगा। एंड फर्दर जो यहाँ पर पोटेंशियल बायर्स होंगे वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड फर्दर जो पैसा यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर के पास आया ना, प्रोटेक्शन सेलर उस पैसे से क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर जो यहाँ पर सिक्योर्ड सिक्योरिटीज हैं उनके बेस पे पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा, उनमें यहाँ पर पैसा जो है ये इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर को कुछ नहीं दिया जाएगा, इसने यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा दिया। एंड फर्दर यहाँ पर जो यहाँ पर रिटर्न आएगी इस एसेट के थ्रू, जो यहाँ पर रिटर्न आएगी एसेट के थ्रू, वो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या करता रहेगा, यहाँ पर जो यहाँ पर रिटर्न आएगी एसेट के थ्रू वो यहाँ पर या तो फिजिकल सेटलमेंट होगी, कैश सेटलमेंट होगी, यानी कि जो प्रीमियम यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर पे कर रहा है वो एज पर्टिकुलरली रिटर्न वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जाती रहेगी, वो यहाँ पर एज अ रिटर्न इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पर जाती रहेगी। एंड फर्दर अगर इन केस यहाँ पर इस एसेट में डिफॉल्ट होता है तो उसके केस में जो प्रोटेक्शन सेलर है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा एंड फर्दर जो पैसा है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर को दे देगा, राइट। सो दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू द क्रेडिट लिंक्ड नोट्स ओवर देयर, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स ओवर देयर। तो जो आपके पास सीडीएस होता है, जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो सीडीएस होता है हमारे पास वो हमारे पास ऑफ बैलेंस शीट आइटम होती है, क्या होती है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम होती है। लेकिन जो हमारे पास सीएलएन, जो सीएलएन है वो यहाँ पर आपके पास ऑन बैलेंस शीट इक्विवेलेंट है, क्या है, ऑन बैलेंस शीट इक्विवेलेंट है, सीडीएस के रिलेटेड ऑन बैलेंस शीट इक्विवेलेंट है। एंड फर्दर ये क्रेडिट डेरिवेटिव को नॉर्मल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, राइट। ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी, ये कंसेप्ट यहाँ पर रिलेटेड टू द सीएलएन क्लियर हो गया। काइंडली प्लीज कंफर्म कर दीजिए, काइंडली डू कंफर्म ओवर हियर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। इट्स रिलेटेड टू टोटल रिटर्न स्वैप, दैट इज टीआरएस। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सो काइंडली प्लीज ध्यान से इसको समझना है। एंड फर्दर अगर कोई चीज में दिक्कत रहती है अभी भी तो उसके बारे में जरूर यहाँ पर पोस्ट कीजिएगा सो दैट वी कैन रिप्लाई, सो दैट हम यहाँ पर उस चीज को आपको दोबारा से समझा पाए, राइट। तो यहाँ पर टोटल रिटर्न स्वैप जो होता है वो पर्टिकुलरली क्या रहता है, टोटल रिटर्न स्वैप के केस में हमारे पास एक प्रोटेक्शन बायर है एंड एक प्रोटेक्शन सेलर है। एंड टोटल एक्चुअल रिटर्न जो होती है ना एसेट के ऊपर, ठीक है, तो जो टोटल एक्चुअल रिटर्न होती है ऑन एसेट इन रिटर्न ऑफ प्रीमियम वो यहाँ पर पे की जाती है। तो यहाँ पर एक बैंक होगा जो कि यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर है, जो कि यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर है। एंड इसके पास एक एसेट होगा जिसके बेस पर ये सिक्योरिटी यहाँ पर पर्टिकुलरली लेना चाहता है। एंड फर्दर यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होगा, ये पर्सन यहाँ पर जो प्रीमियम पे करना होता है ना प्रोटेक्शन बायर ने, वो पर्टिकुलरली एक बेंचमार्क रेट के ऊपर बेस्ड होगा। लेट्स से वो यहाँ पर लाइबोर के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम पे किया जाएगा प्रोटेक्शन बायर के द्वारा प्रोटेक्शन सेलर को, वो बेंचमार्क रेट प्लस जो भी यहाँ पर स्प्रेड रखना है उसके बेस के ऊपर, ठीक है। एंड इसके बेस के ऊपर जो यहाँ पर प्रीमियम होगा वो पे करेगा किसको, प्रोटेक्शन सेलर को पे करेगा। एंड फर्दर जो प्रोटेक्शन सेलर है, जो प्रोटेक्शन सेलर है यहाँ पे, वो पर्टिकुलरली क्या करेगा, वो पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पर टोटल रिटर्न स्वैप के केस में होता है कि जो एसेट के ऊपर टोटल रिटर्न आ रही होती है, जो एसेट के ऊपर टोटल रिटर्न आ रही होती है वो यहाँ पर किसको दी जाती है, वो यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर जो है वो दे देता है किसको, प्रोटेक्शन सेलर को देता है। एंड प्रोटेक्शन सेलर जो है वो यहाँ पर बेंचमार्क रेट के ऊपर बेस के ऊपर एक फिक्स्ड रिटर्न जो है वो यहाँ पर किसको दे देता है, वो यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर को पे करता रहता है। यानी कि एक फिक्स्ड पेमेंट जो होगी, एक फिक्स पेमेंट करने का मतलब है कि यहाँ पर जो पेमेंट होगी वो किसी बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड होगी, नॉट फिक्स्ड नहीं कह सकते उसको एज सच। वो एक यहाँ पर जो एक रेगुलर पेमेंट होगी वो यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर के द्वारा पे की जाएगी प्रोटेक्शन बायर को। एंड जितनी भी टोटल रिटर्न आ रही थी एसेट के ऊपर वो सारी की सारी रिटर्न यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर के पास जाती रहेगी, ठीक है। तो टीआरएस के केस में बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द केस बेनिफिट इन द केस ऑफ द टीआरएस, जो कि सीडीएस के केस में भी ये चीज अवेलेबल थी, जबकि सीडीएस के केस में फिजिकल सेटलमेंट के केस में यही चीज अवेलेबल थी। तो डिफरेंस इन दोनों में सीडीएस के केस में एंड टीआरएस के केस में ये रहता है कि यहाँ पर सीडीएस के केस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो डिफॉल्ट रिस्क था वो यहाँ पर कवर होता था, लेकिन टीआरएस के केस में सिंथेटिकली कोई भी रिस्क जो होगा
चाहे वो मार्केट रिस्क है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, सारे के सारे रिस्क यहाँ पर कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके केस में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट डिफॉल्ट अगर होता था वो रिस्क यहाँ पर कवर होता था, मार्केट रिस्क एक्सेट्रा ये चीजें कवर नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर टीआरएस के केस में सब चीजें यहाँ पर कवर हो रही है सिंथेटिकली। एक यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो यहाँ पर रेफरेंस एसेट के ऊपर किसके पास क्रिएट हो गया, प्रोटेक्शन सेलर के पास क्रिएट हो गया, वो यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर के पास क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीआरएस होती है वो यहाँ पर एक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर रिप्रेजेंटेशन होती है इस पर्टिकुलर रेफरेंस एसेट से रिलेटेड। लेकिन सिंथेटिकली इसका एक्सपोजर यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर के ऊपर पूरा का पूरा क्रिएट हो चुका है। सो दैट इज द सिनेरियो ऑफ द टीआरएस ओवर देयर। सो दैट इज द सिनेरियो ऑफ द टीआरएस ओवर देयर, यानी कि जो टोटल रिटर्न्स है उसके केस में, राइट। इसके बाद बात आती है हमारे पास क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन के बारे में। क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन के केस में, तो क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन पर्टिकुलरली क्या करता है, जो यहाँ पर हैजर होते हैं यानी कि जो अपने को सेफगार्ड करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस चीज से भी घबराते हैं। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट स्प्रेड रिस्क जिसको हम क्या कहते हैं, डाउनग्रेड रिस्क भी कहते हैं, वी आल्सो नेम इट डाउनग्रेड रिस्क ओवर देयर। अब क्रेडिट स्प्रेड रिस्क के केस में या फिर डाउनग्रेड रिस्क के केस में अल्टीमेटली होता क्या है कि आपकी जो रेटिंग थी वो यहाँ पर लेट से ए प्लस से डाउनग्रेड हो गई, क्या होगी, ए हो गई, या फिर ए से डाउनग्रेड हो गई, बी हो गई। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एसेट ओनर है, जो एसेट ओनर है वो चाहता है कि वो रिस्क इसके ऊपर ना पड़े, तो डाउनग्रेड रिस्क से घबराता है। तो यहाँ पर वो क्रेडिट डिफॉल्ट क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस के लिए जा सकता है कि अगर यहाँ पर इसकी डाउनग्रेड हुई तो उसके केस में यहाँ पर डाउनग्रेड होने के केस में इतनी कंपनसेशन यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डाउनग्रेड करने का जो डाउनग्रेड रिस्क होता है वो यहाँ पर किसके ऊपर ट्रांसफर होता है, प्रोटेक्शन सेलर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट। फर्दर सिक्योरिटाइजेशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन कुछ ही टर्म्स है उनके बारे में आपको बता देता हूं फटाफट से। यहां पर पर्टिकुलरली जो हमारे पास मैंने बताया था ना, जिसने एसेट परचेज कर लिए उसने यहां पर इन एनपीएस के बेस के ऊपर क्या कर दिया था, जो आपके पास पास थ्रू सर्टिफिकेट थे, पीटीसी जो थे वो यहां पर इशू कर दिए थे, एंड इन्वेस्टर्स में क्या कर दिया, इनमें इन्वेस्टमेंट कर दी थी, ये चीज होगी थी। एंड यहां पर जो कन्वर्जन का फैक्टर रहेगा ये कौन परफॉर्म करेगा, इट विल बी a special purpose vehicle will be set up for this particular purpose, जो कि यहाँ पर पास थ्रू सर्टिफिकेट्स को यानी कि जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स होती है इनको हम सिक्योरिटी रिसिप्ट्स भी कहते हैं, वी आल्सो से टू बी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स ओवर देयर। तो यहाँ पर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है वो इन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को भी मैनेज करेगी, वो इन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को मैनेज करेगी, जो पैसा आ रहा है उसको मैनेज करेगी, जो यहाँ पर पैसा एनपीएस के केस में रिकवरी के थ्रू आ रहा है उसको मैनेज करेगी, जो स्ट्रीमलाइन है यहाँ पर कैश फ्लो की उस सभी को यहाँ पर कौन मैनेज करेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पर जो है स्पेशल पर्पस के लिए मेंटेन की गई है वो यहाँ पर मैनेज करेगी, ठीक है। एंड यहां पर जिस बैंक से लोन परचेज किया गया है वो ओरिजिनेटिंग बैंक रहेगा, वो क्या रहेगा, उसको ओरिजिनेटिंग बैंक कहते हैं, राइट। सो दैट इज द सिनेरियो रिलेटेड टू द सिक्योरिटाइजेशन ओवर देयर। फर्दर सिक्योरिटाइजेशन जो होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटाइजेशन, दूसरी होती है हमारे पास सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन। जो हमने अभी एग्जांपल की है ये कौन सी एग्जांपल है, दिस इज द केस ऑफ द ट्रेडिशनल, दिस इज द केस ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटाइजेशन, दिस इज द केस ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटाइजेशन, जहां पर आपने अंडरलाइंग पूल ऑफ एक्सपोजर यानी कि जो एनपीए का पूल अकाउंट था, यहां पर एनपीए का पूल था, उसके बेस पर सिक्योरिटी रिसिप्ट जो थी वो यहां पर इशू कर दी गई है। एंड फर्दर आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क है उनके साथ आप डील कर रहे हो, चाहे एक एनपीए काफी बुरा था, चाहे एक एनपीए थोड़ा सा रिकवरी हो सकता था, आप सभी को इकट्ठा मिला जुला के यहां पर मिक्स करते हुए उनके बेस पर उनको मैनेज कर रहे हो। तो ये कौन सी ट्रेडिशनल सिक्योरिटाइजेशन है, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट नहीं किया, आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं किया कि हाँ ये एनपीए में N1 है, जो एनपीए है वो काफी अच्छा एनपीए है, यानी कि इसमें फिर भी रिकवरी के चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उनको डिफरेंशिएट नहीं किया है, जिसमें अच्छी सिक्योरिटी अवेलेबल है वहां पर भी आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने उन चीजों को डिफरेंशिएट नहीं किया, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ द सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्क को नहीं लेके चलते, आप यहाँ पर डिफरेंट रिस्क पोजीशंस को लेकर चलते हैं, सिंगल रिस्क पोजीशन लेते हैं, आप डिफरेंट रिस्क पोजीशंस को लेते हैं कि जो आपका रिस्क क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड हो सकता है अंडरलाइंग पूल ऑफ एक्सपोजर के साथ, वो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स का हो सकता है, ठीक है। यानी कि फंडेड फॉर्म के लोन हो सकते हैं, कुछ लोन हो सकते हैं अनफंडेड फॉर्म के हो, या कुछ लोन हो सकता है जिसके केस में सिक्योरिटी बैक्ड हो, कुछ हो सकते हैं सिक्योरिटी बैक्ड ना हो, उसके बेस पर आप यहाँ पर क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं एंड उसकी सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, दैट इज सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन हो गया। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द क्रेडिट एनहांसमेंट हो गया। क्रेडिट एनहांसमेंट का केस क्या रहता है, अब जब यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन का एक्सपोजर क्रिएट किया जाता है, डेफिनेटली उसके केस में अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलरली क्या आएगा, आपके पास फंड्स भी तो आएंगे ना, जो फंड्स होंगे वो पर्टिकुलरली आप बैंक को ट्रांसफर कर देंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी ओरिजिनेटिंग बैंक था उसके पास लिक्विडिटी आ जाएगी, एंड दैट इज द क्रेडिट एनहांसमेंट ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सीएलओ, दैट इज अ कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन, दैट इज अ कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन के केस में क्या होता है, अब यहां पर कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन में जो यहां पर
पूल रहेगा ना वो किसका रहेगा, वो रिटेल लोन्स का नहीं रहेगा, वो यहाँ पर कमर्शियल लोन्स का पूल रहेगा, वो यहाँ पर क्या रहेगा, कमर्शियल लोन्स का पूल रहेगा। अब यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन के केस में भी जो लोन यहाँ पर एनपीए यहाँ पर ओरिजिनेटिंग बैंक की बुक में होते हैं ना, वो सभी यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं, वो सभी यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। तो बैंक को अलग से ज्यादा प्रोविजन नहीं मेंटेन करनी पड़ती। एक तो बैंक को बेनिफिट ये हो जाता है, दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ लिक्विडिटी साथ के साथ मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल फर्दर ये लेंडिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है किसके केस में, और यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन के केस में। एंड सीएलओ के केस में यानी कि कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन के केस में जो पूल होता है वो यहाँ पर कमर्शियल जो लोन्स होते हैं उनका यहाँ पर पूल होता है, एंड उनको यहाँ पर ट्रेडेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है एसपीवी के द्वारा, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। एंड फर्दर इसके थ्रू क्या होता है, आपके जो लोन्स होते हैं, कमर्शियल लोन्स होते हैं, वो आपकी बुक में से रिमूव हो जाते हैं, एंड आपकी जो कैपिटल होती है प्रोविजन के लिए आपने मेंटेन की रेगुलेटरी कैपिटल होती है वो भी फ्रीड अप हो जाती है, एंड साथ के साथ आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है। सो दैट इज अ थिंग रिलेटेड। लेकिन इस केस में सीएलओ के केस में ना आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हो, आप यहाँ पर रिकवरी के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हो, यानी कि आपके जो लोन होते हैं वो स्पेशली किसके पास होते हैं, वो यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास होते हैं। एंड फॉर द स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होती है, यहाँ पर नोट्स इशू करती है, क्या करती है, नोट इशू की जाती है। एंड फर्दर जो भी यहाँ पर रिकवरी होगी इन एसेट्स के बेस में, वो यहाँ पर रिकवरी जो होगी वो इन्वेस्टर्स को दी जाएगी, वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दी जाएगी। अब यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस होती है, रेटिंग के बेस पर डिफरेंट क्लासेस होती है, जैसे सीनियर क्लास होती है, फिर मेजनाइन है, फिर आपके पास सब क्लास है, फिर इक्विटी क्लास है जो कि अनरेटेड क्लास होती है, नॉन रेटेड क्लास होती है। अब जो यहाँ पर क्लास है उसके बेस पर रिटर्न आएंगी। अब जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर रिटर्न कम आएगी, ज्यादा आएगी वहां पर रिटर्न कम आएगी, जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर क्या आएगी, रिटर्न कम आएगी। ठीक है, तो उसके बेस पर आप जो भी रिटर्न आती है आपके पास वो आप आगे ट्रांसफर कर देते हो। एंड आपके पास एक ट्रेंच नहीं रहता, जो ये क्रेडिट नोट्स इशू किए रहते हैं ना, सिंगल ट्रेंच में नहीं इशू किए रहते, ये मल्टीपल ट्रेंच में एंड बेस्ड ऑन द रेटिंग ओवर देयर वो यहाँ पर इशू किए रहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीएलओ एंड द नॉर्मल सिक्योरिटाइजेशन। एंड जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो पूल ऑफ सिक्योरिटीज है कमर्शियल लोन्स का होता है। जो मेन आपका डिफरेंस है वो किसके रिलेटेड, जो यहाँ पर पूल ऑफ सिक्योरिटीज है वो कमर्शियल लोन्स का होता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस रिलेटेड इट। एंड सीएलओ किस तरह से डिफरेंट है सीएलएन से, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सीएलओ जो है वो यहाँ पर क्रेडिट एक्सपोजर जो है वो डाइवर्स पूल ऑफ क्रेडिट्स के ऊपर प्रोवाइड करता है, जबकि क्रेडिट लिंक नोट्स के केस में सिंगल क्रेडिट के ऊपर यहाँ पर क्रेडिट लिंक नोट्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं। सीएलओ जो होता है वहां पर ट्रू ट्रांसफर होता है ओनरशिप का, ठीक है, लेकिन सीएलएन के केस में ऐसा नहीं होता है। सीएलएन के केस में ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं होता है, जबकि सीएलओ के केस में ट्रांसफर ऑफ एसेट होता है एज पर दैट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन, राइट। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द डेरिवेटिव्स ओवर देयर। आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी रिलेटेड टू द क्रेडिट रिस्क ओवर देयर। फर्दर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे। सो एनपीएस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम फटाफट से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एंड साथ के साथ इसके जो बेसिक्स हैं उनको भी कवर करते रहेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज the rate of the provisions on standard loans is given correctly in which of the following। जो रेट ऑफ प्रोविजन है स्टैंडर्ड लोन्स के केस में किस केस में सही दिया गया, एग्रीकल्चर लोन्स के केस में 0.25% होता है, एमएससी लोन्स के केस में 0.25% होता है, एंड ऑल अदर लोन्स के केस में जो स्पेसिफाइड नहीं है 0.4% होता है, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर। So which of the following would be the right answer in this regard? Kindly do answer at the list. जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। स्टैंडर्ड लोन्स के केस में भी आपको प्रोविजन को मेंटेन करना पड़ता है, जहां पर तो जो लोन है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एंड एमएससी से रिलेटेड है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से रिलेटेड है, वहां पर आपको प्रोविजन 0.25% मेंटेन करनी होती है। एंड फर्दर जहां पर आपके पास अदर कैटेगराइज्ड लोन है वहां पर 0.4% करनी होती है। एंड फर्दर इन केस ऑफ द commercial real estate 1%, in case of commercial real estate residential housing 0.75%, एंड जहां पर जो लोन है आपके पास वो यहाँ पर टीजर लोन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टीजर लोन से रिलेटेड है, उसके केस में आपको जो यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी रिलेटेड टू कि आपको वहां पर टीजर लोन से रिलेटेड केस में 2% की जो प्रोविजन है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, वो 2% की जो प्रोविजन होती है वो उस केस में आपको मेंटेन करनी पड़ती है। दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट, दैट वुड बी द थिंग रिलेटेड टू इट, राइट। ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी है। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन का यहाँ पर आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी ओवर देयर। तो यमुना जी ने एंड विष्णु जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन डी ओवर हियर इज अ राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। इट सेज इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड लोन्स टू मेक द प्रोविजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड करेक्टली। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड लोन्स के केस में प्रोविजन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो कौन सी चीज जो है वो सही से यहाँ पर स्टेट नहीं की गई है, which of the following is not stated correctly in this particular scenario, that is related to what, rate of provision जो 25% है, rate of provision for infrastructure based loan accounts it's 20%, and to calculate the provision the balance will be bifurcated into
secure balance and unsecured balance over there, and further one rate of provision will be used for the entire balance. So which of the following would be the right answer in this regard? तो हम अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं. सो अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड के केस में आपके पास जो रेट होता है प्रोविजन का, दैट इज 25%. तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर, दैट इज करेक्टली सेट, वो तो सही होगी है. रेट ऑफ प्रोविजन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अकाउंट्स के केस में वहां पर 5% कम होती है, तो 20% होगी, ये भी बिल्कुल सही है. देखिए सिक्योर्ड के केस में यहाँ पर 15% होती है, अनसिक्योर्ड के केस में 25% होती है, लेकिन जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वहां पर 20% होती है. तो ये क्राइटेरिया तो पहली बात है. दूसरी चीज है, to calculate the provision, the balance will be bifurcated into secured and unsecured. तो ये यहां पर गलत हो गया, क्योंकि यहां पर अनसिक्योर्ड के सब स्टैंडर्ड के केस में आप बैलेंस को यहां पर बाइफरकेट नहीं करते, वो डाउटफुल के केस में करते हो, ठीक है, यहां पर नहीं किया जाता, यानी कि सब स्टैंडर्ड के केस में नहीं किया जाता. यहां पर आप कहोगे कि अगर आपके पास जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो यहां पर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अगर वो लेसर देन 10% है, इफ इट इज लेसर देन 10%, तो वो आपके पास अनसिक्योर्ड होगा, तो आपके पास क्या होगा? अनसिक्योर्ड लोन होगा. एंड फर्दर इफ इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10%, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो क्या होगा? जो आपके पास लोन है वो आपके पास सिक्योर्ड लोन होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 10% इट इज सिक्योर्ड लोन ओवर देयर, तो वो सिक्योर्ड लोन होगा, राइट. ये चीज यहां पर क्लियर होगी है. तो अगर तो मेरे पास यहां पर लेस देन इक्वल टू 10% है तो अनसिक्योर्ड होगा, अगर ग्रेटर देन 10% है तो उसके केस में वो सिक्योर्ड लोन होगा. एंड सिक्योर्ड लोन के केस में 15% का प्रोविजन मेंटेन करेंगे, अनसिक्योर्ड के केस में, जनरल के केस में 25%, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में यहाँ पर अनसिक्योर्ड है तो 20% जो प्रोविजन है वो यहाँ पर मेंटेन की जाएगी. सो दैट इज अ क्राइटेरिया ओवर देयर. सो ऑप्शन सी इज नॉट मेंशन्ड टू बी करेक्ट. सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? Is that thing clear over here? Okay, now let's move further towards the question number 3. It says what is the rate of provision for secured substandard accounts? तो जल्दी से बता दीजिए, secured substandard account के केस में प्रोविजन क्या है, कौन सी सही बताई गई है? क्वेश्चन नंबर 3 के केस में आपको यहां पर फटाफट से बता देना है कि what is the rate of provision on secured substandard accounts over there. secured substandard accounts के केस में कौन सी प्रोविजन जो है वो यहाँ पर सही बताई गई है, उसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है. सो काइंडली डू पोस्ट आंसर एट द अर्लीस्ट. जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए. काइंडली डू पोस्ट द आंसर ओवर हियर एट द अर्लीस्ट. ओके, सो आई जस्ट टोल्ड यू इट्स 15%. तो इतना सोचने वाली बात ही नहीं है. सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड केस में तो 15% रहता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर तस्लीम जी ने एंड फॉर द विष्णु प्रिया जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया. एंड हियर यमुना जी ने एंड खुशबू दोषी जी ने एंड मिलन जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया है. विष्णु जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर इट सेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको दे दिया गया है कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, वो यहां पर 20 लाख रुपीस का, वो यहां पर क्या 20 लाख रुपीस का आउटस्टैंडिंग बैलेंस. एंड फर्दर जो आपके पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज गिवन टू बी 16 लाख रुपीस ओवर देयर. वो आपको यहां पर 16 लाख की दी गई है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन? तो प्रोविजन कितना मेंटेन करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 के केस में पूछा गया. तो पहली चीज तो ये है कि कौन सा लोन अकाउंट है, ये सब स्टैंडर्ड है. सब स्टैंडर्ड में क्या कैसे आता है? जैसे मेरे पास एक लोन अकाउंट था, वो पहले बिल्कुल सही चला गया, उसके बाद उसने इरेगुलरिटी शो करनी शुरू करी, ठीक है. तो अगर तो 1 से लेकर के 30 दिन की इरेगुलरिटी है तो वो यहाँ पर आएगा SMA 0 में, इसमें आएगा SMA 0 में. अभी NPA नहीं हुआ. फिर अगर 31 से 60 डेज की रेगुलरिटी है तो SMA 1 में आ जाएगा. तो किसमें आ जाएगा? SMA 1 में आ जाएगा. फिर अगर 61 टू 90 डेज की रेगुलरिटी है तो SMA 2 में आ जाएगा. इसमें आ जाएगा SMA 2 में आ जाएगा. एंड अगर इससे ज्यादा की है तो यहाँ पर किसमें आ जाएगा? सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा. तो किसमें आ जाएगा? सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा. एंड 12 महीने के लिए किसमें रहेगा? सब स्टैंडर्ड में रहेगा. 12 महीने में सब स्टैंडर्ड के बाद उसके बाद अगले 24 महीने किसमें रहेगा? उसके बाद अगले 24 महीने जो है वो यहाँ पर अगले 12 महीने, नॉट 24 महीने, अगले 12 महीने किसमें रहेगा? अगले 12 महीने यहाँ पर रहेगा वो D1 में. एंड उसके बाद अगले 24 महीने रहेगा किसमें? D2 में. एंड फर्दर उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए किसमें रहेगा? D3 में. उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए किसमें रहेगा? D3 में रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये साइकिल रहता है, लोन का ये साइकिल रहता है. अब इस केस में सब स्टैंडर्ड में है. एंड फर्दर यहाँ पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है? 16 लाख है, विच इज ग्रेटर देन 10% ना, जो कि 10% से ज्यादा है. अगर 10% से ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर 10% से ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर 10% से ज्यादा है तो ये जो लोन है मेरे पास, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर सिक्योर्ड लोन है. सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड के केस में जो परसेंटेज है वो 15% है. एंड ये 15% किसके ऊपर मेंटेन करनी है? पूरे के पूरे बैलेंस के ऊपर. तो 15% ऑफ 20 लाख इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 3 लाख ना. अगर मैं यहाँ पर 15% कैलकुलेट करता हूँ 20 लाख का तो कितना हो जाएगा?
15% of 20 lakh, it is equal to what? It is equal to 3 lakh over there. तो आंसर क्या रहेगा? आंसर will be option A. Option A would be the answer over here. Option A over here would be the answer. ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया प्रोविजन को कैलकुलेट करने का. काइंडली प्लीज फटाफट से आंसर पोस्ट कर दीजिए. यस और नो में बता दीजिए फटाफट से क्या आंसर रहेगा. तो यहाँ पर तस्लीम जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया रिलेटेड टू 4A ओवर हियर. तो यहाँ पर फोर्थ का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. काइंडली प्लीज यस और नो लिख के बता दीजिए कि अगर आपको ये यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो क्लियर हुई है कि नहीं हुई है. क्या आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस जो है वो क्लियर हो गई है कि नहीं हुई है? ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने किस तरह से कैलकुलेट किया उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे. इवन जो डिफिकल्ट टाइप्स है वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, उनको हम कवर कर लेंगे अभी कभी. राइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर है, कह रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, सब स्टैंडर्ड अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 20 लाख रुपीस का. कितने का? 20 लाख रुपीस का है. एंड जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो 2 लाख तक की है. अब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितने परसेंटेज है यहाँ पर? इसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस की कितने परसेंटेज है? इट इज 10%. अगर तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है दैट इज अप टू 10% है, तो वो क्या रहता है? दैट इज अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट. वो क्या रहता है? अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट रहता है. एंड फर्दर अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 10%, तो वो सिक्योर्ड अकाउंट रहता है. राइट, तो यहां पर अकाउंट जो है सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है? यहां पर अकाउंट जो है वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है? इट इज पर्टिकुलरली अनसिक्योर्ड अकाउंट ओवर देयर. ये अनसिक्योर्ड अकाउंट है. एंड अनसिक्योर्ड अकाउंट के केस में प्रोविजन कितनी एप्लीकेबल रहती है? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन तो नहीं है ये, तो कितनी रहेगी? 25% रहेगी. अगर लिखा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है तो कितना परसेंट लेते? 20% काउंट करते. यहाँ पर 25% है. सो 25% ऑफ 5 लाख इतनी प्रोविजन मेंटेन करोगे, यानी कि 5 लाख की जो प्रोविजन है वो यहाँ पर मेंटेन की जाएगी. क्योंकि सब स्टैंडर्ड के केस में आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में डिवाइड नहीं करते हो. फिर से समझ लो, आप यहां पर सब स्टैंडर्ड केस में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में काउंट नहीं करते हो. सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. जो ऑप्शन सी है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर. राइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर. तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं यहां पर. सो इट सेज द रेट ऑफ प्रोविजन ऑन डाउटफुल लोन इज स्टेटेड करेक्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो डाउटफुल की मेरे पास 3 कैटेगरीज होती है. मैंने अभी आपको बताया, एक होती है DF1 डाउटफुल 1, एक होती है डाउटफुल 2, एक होती है डाउटफुल 3. तो पहले 12 महीने के लिए डाउटफुल 1 में रहेगा सब स्टैंडर्ड के बाद. उसके बाद अगले 24 महीने के लिए डाउटफुल 2 में. एंड फिर ग्रेटर देन 36 मंथ्स वो यहाँ पर डाउटफुल 3 में रहेगा. राइट, एंड फर्दर यहाँ पर ना 3 तरह का बैलेंस लिखा गया. एक तो होती है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एक होती है आपके पास शॉर्टफॉल. तो जहां पर तो शॉर्टफॉल है डाउटफुल के केस में, उसके केस में तो आप 100% यूनिफॉर्मली प्रोविजन मेंटेन करते हैं, यानी कि अनसिक्योर्ड पार्ट के लिए 100% प्रोविजन मेंटेन करते हैं. एंड फर्दर जहां पर आपके पास रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है, वहां पर डाउटफुल 1 के केस में 25%, फिर ये 40%, एंड फर्दर डाउटफुल 3 के केस में ये 100% वैल्यू आपको मेंटेन करनी पड़ती है प्रोविजन की. राइट, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं क्या आंसर है. डाउटफुल 1 ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन 100% है, बिल्कुल सही है. एंड सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर कौन सी है? सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर कौन सी है? 20%. तो ये तो गलत हो गया. डाउटफुल 2 के केस में सिक्योर्ड के ऊपर 40%, बिल्कुल सही है. अनसिक्योर्ड के ऊपर 100%, ये भी सही है. तो बी ऑप्शन जो वो करेक्ट हो गई. एंड ऑप्शन 3 इट सेज डाउटफुल ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन बैलेंस के ऊपर कितनी है? अनसिक्योर्ड के ऊपर 100% है, बिल्कुल सही है. एंड सिक्योर्ड के ऊपर 75% है, ये गलत होगी. ये यहां पर गलत होगी. ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है दैट इज सेट टू बी करेक्ट ओवर देयर. सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर. तो ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट वुड बी द राइट आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो यमुना जी ने यहां पर बिल्कुल सही आंसर जो है वो टाइमली पोस्ट किया है. सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दैट इज एक्चुअली करेक्टली स्टेटेड ओवर देयर. आई होप कि आपको यहां पर ये क्लियर हो गया होगा. राइट, अभी फर्दर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. इट सेज टू कैलकुलेट द सिक्योर्ड बैलेंस इन केस ऑफ डाउटफुल लोन्स द फॉलोइंग सिक्योरिटी इज नॉट टू बी टेकन. अगर डाउटफुल के केस में हम सिक्योरिटी मानते हैं तो किसको डाउट सिक्योरिटी मानते हैं? प्राइमरी सिक्योरिटी को, कोलेटरल सिक्योरिटी को, गारंटी को, पर्सनल गारंटी को, किसको सिक्योरिटी मानते हैं, किसको नहीं मानते, उसके बारे में बताना है. तो हमने बताना है किसको हम नहीं मानते हैं, उसके बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है. तो प्राइमरी सिक्योरिटी को हम सिक्योरिटी काउंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं. कोलेटरल को काउंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं. जो CGTMSE, DICGC की, ECGC की गवर्नमेंट की गारंटी उसको काउंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं. पर्सनल गारंटी को काउंट करते हैं? नो, पर्सनल गारंटी को काउंट नहीं करते. वी डू नॉट काउंट फॉर दी पर्सनल गारंटी, उसको काउंट नहीं करते हैं. तो यहां पर जो ऑप्शन डी है दैट इज नॉट स्टेटेड टू बी करेक्ट ओवर देयर. तो ऑप्शन डी जो है यहां पर आंसर होगा. ऑप्शन डी जो है यहां पर वही हमारे पास क्या रहेगा? आंसर रहेगा. राइट,
तो यहाँ पर यमुना जी ने अगेन बिल्कुल से आंसर पोस्ट किया है एंड फर्दर यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर देखें तो यहाँ पर किसी ने आंसर भी 7 का पोस्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ डाउटफुल अप टू 1 ईयर, एक डाउटफुल होना है अप टू 1 ईयर, इसका जो बैलेंस है वो दिया गया 20 लाख रुपीज का। डाउटफुल अप टू 1 ईयर यानी कि DF1 है, डाउटफुल 1 है। डाउटफुल 1 के केस में जहां पर तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वहां पर 25% प्रोविजन, जहां पर शॉर्टफॉल है, जहां पर शॉर्टफॉल है यानी कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है उसके लिए 100% प्रोविजन आप मेंटेन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर डाउटफुल अप टू 1 है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना दिया गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज गिवन टू बी 20 लाख रुपीज, 20 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। एंड सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है दैट इज गिवन टू बी 16 लाख रुपीज, वो 16 लाख की आपके पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दी गई है। अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्या होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ओवर देयर। देखिए यहाँ पर 20 लाख में से जो 16 लाख है उसके लिए मेरे पास सिक्योरिटी अवेलेबल है, ये सिक्योर्ड बैलेंस है, एंड 4 लाख के लिए सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, तो 16 लाख के लिए कितना रहेगा 25%, एंड फर्दर जो अनसिक्योर्ड है उसके लिए 100% प्रोविजन मेंटेन करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो यहाँ पर 25% ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 4 लाख ओवर देयर, एंड 4 लाख का 100% कितना होगा 4 लाख रहेगा, तो टोटल कितनी प्रोविजन मेंटेन होगी 8 लाख रुपीज की जो प्रोविजन है वो यहाँ पर मेंटेन करनी, टोटल जो प्रोविजन है यहाँ पर 8 लाख की प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए डाउटफुल के केस में बैलेंसेस को बाइफरकेट करना पड़ता है, डाउटफुल के केस में जो बैलेंसेस होते हैं उनको बाइफरकेट करना पड़ता है, तो आंसर करेगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वुड बी द आंसर हो गया, राइट। ये चीज क्लियर होगी, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इट सेज अ डाउटफुल अप टू 1 ईयर यानी कि DF1 का ही लोन है, हैज अ बैलेंस ऑफ 20 लाख रुपीज, तो यहां पर इसका बैलेंस कितना है 20 लाख का बैलेंस है। एंड फर्दर इसने कहा कि प्राइमरी सिक्योरिटी है, कितने की है, प्राइमरी सिक्योरिटी 8 लाख की, कोलेटरल सिक्योरिटी दी गई कितने की 8 लाख की, गारंटी दी गई है कितने की 12 लाख की, लेकिन हमने अभी तो पढ़ा था गारंटी को तो काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है उसको छोड़ दो। तो अब हमने प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारे पास सिक्योर्ड पार्ट है, यानी कि 16 लाख का जो पार्ट है अगेन वो क्या सिक्योर्ड पार्ट है, एंड 4 लाख का जो पार्ट है वो अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड के ऊपर क्योंकि DF1 है तो 25% एंड अनसिक्योर्ड के ऊपर 100%, तो कितनी प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी, अगेन 8 लाख वुड बी द राइट आंसर, अगेन रुपीज 8 लाख वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड, ओके। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो खुशबू दोषी यमुना जी ने यहाँ पर आंसर पोस्ट किया रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हियर, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर, व्हाट इट सेज अ डाउटफुल अबव 1 ईयर, अगर अब डाउटफुल अबव 1 ईयर है यानी कि 1 साल से ऊपर है तो कौन सा मानेंगे हम, डाउटफुल 2 मानेंगे, डाउटफुल 2 मानेंगे। यहाँ पर बैलेंस कितना है 20 लाख का, सिक्योर्ड बैलेंस कितना है 16 का, अनसिक्योर्ड कितना है 4 लाख का, सिक्योर्ड के ऊपर 40%, अनसिक्योर्ड के ऊपर 100% प्रोविजन मेंटेन करोगे, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया दैट इज 6.4 लाख, एंड फर्दर 4 लाख, यहाँ से टोटल कितना हो गया 10.4 लाख की जो प्रोविजन है वो यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी, 10.4 लाख की जो प्रोविजन है वो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, इज इट राइट। ये यहां पर क्लियर होगी चीज। नाउ आंसर वुड बी 10.4 लाख ओवर देयर, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो विष्णु जी ने यहां पर आंसर किया, दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर, एंड इसी तरह से यमुना जी ने एंड विष्णु जी ने यहां पर आंसर किया रिलेटेड टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज, फटाफट से इसका आंसर पोस्ट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ओवर हियर, फटाफट से आंसर पोस्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहां पर दो आंसर मेरे पास आए, ऑप्शन डी के रिलेटेड आए यहाँ पर आंसर। देखिए डाउटफुल 3 के केस में चाहे आपके पास सिक्योर्ड पार्ट है चाहे अनसिक्योर्ड पार्ट है 100% प्रोविजन मेंटेन करनी है, तो यहाँ पर सोचना ही नहीं है कितना अमाउंट दिया टोटल लोन का 20 लाख, तो कितनी प्रोविजन मेंटेन करेंगे 20 लाख की जो प्रोविजन है वो यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे। ओके, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। डाउटफुल अप टू 1 ईयर है एंड फर्दर टाइम पीरियड कितना दिया गया, टाइम पीरियड इज गिवन टू बी 3 इयर्स, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आता है, DF2 कैटेगरी में आता है। DF2 में क्या परसेंटेज रहती है, सिक्योर्ड के लिए 40% एंड अनसिक्योर्ड के लिए 100%, ये मेरे पास प्रोविजन परसेंटेज रहती है, राइट। एंड बैलेंस कितना है यहाँ पर 30 लाख का बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 30 लाख का। प्राइमरी सिक्योरिटी दी गई कितने की 10 लाख की, एंड फर्दर यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी दी गई है कोई नहीं दी है, CGD में सिक्योरिटी दिया गया। एंड फर्दर अब देखो सिक्योर्ड पार्ट कितना हो गया, सिक्योर्ड पार्ट कितना हो गया 10 लाख का सिक्योर्ड पार्ट है, बाकी पार्ट कितना रह गया 20 लाख का पार्ट रह गया, लेकिन 20 लाख अनसिक्योर्ड नहीं है, 20 लाख में से 80% कवर जो CGD का कवर्ड है, तो यहां पर 80% को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जब 80% को सेपरेट करेंगे तो जो यहां पर 20% का पार्ट रहा यानी कि 4 लाख का पार्ट रहा
सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट है दिस इज द अनसिक्योर्ड पार्ट। तो ये यहाँ पर अनसिक्योर्ड पार्ट है। सिक्योर्ड पार्ट कितना है 10 लाख का, तो 10 लाख के अगेंस्ट यहाँ पर कितनी मेंटेन करेंगे, 10 लाख के अगेंस्ट कितनी मेंटेन करेंगे, 10 लाख के अगेंस्ट मेंटेन करेंगे 40% की, 40% की कितनी होगी 4 लाख की। एंड अनसिक्योर्ड पार्ट के लिए 100% मेंटेन करेंगे, ये भी 4 लाख हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया 8 लाख की प्रोविजन यहाँ पर मेंटेन होगी। ध्यान रखना जो सीजीटीएमएससी का कवर होगा सिक्योर्ड पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सिक्योर्ड पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर अपने सीजीटीएमएससी कवर को या फिर ईसीटीसी कवर को भी दिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपके पास अनसिक्योर्ड पार्ट आएगा। एंड जो प्रोविजन होगी वो सिर्फ सिक्योर्ड पार्ट के लिए, यहाँ अनसिक्योर्ड पार्ट के लिए होगी। जो गारंटीड अमाउंट है उसके लिए आपको प्रोविजन मेंटेन नहीं करनी है। तो आंसर जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 8 लाख ओवर देयर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दैट विल बी द राइट आंसर। अभी ये वाला क्वेश्चन जो है फटाफट से सॉल्व करके दिखाइएगा। तो वी आर हैविंग द डाउटफुल वन अकाउंट है हमारे पास एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 40 लाख का। सिक्योर्ड बैलेंस कितना है, एक मेरे पास प्राइमरी सिक्योरिटी कितनी की 10 लाख की, कोलेटरल सिक्योरिटी दी गई है 10 लाख की, तो टोटल सिक्योर्ड अमाउंट कितना हो गया 20 लाख का। ये सिक्योर्ड बैलेंस है। एंड फॉर द ईसीटीसी कवर कितना है, यहाँ पर बैलेंस कितना रह गया सिक्योर्ड को कट करने के बाद 20 लाख का रह गया ना। ईसीटीसी कवर कितना है 60% का, कवर सब्ट्रैक्ट कर दो 8 लाख पार्ट रह गया, 8 लाख का पार्ट रह गया। अब यहां पर 8 लाख का जो पार्ट है ये अनसिक्योर्ड अमाउंट है, अनसिक्योर्ड के ऊपर 100% एंड सिक्योर्ड के ऊपर कितना, सिक्योर्ड के ऊपर 25%, सिक्योर्ड के ऊपर 25%। सो 25% ऑफ 20 लाख दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 5 लाख ओवर देयर। एंड 8 लाख का 100% कितना रहेगा 8 लाख रहेगा। टोटल कितनी यहां पर होगी 13 लाख की जो प्रोविजन है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। इज इट राइट? तो यहां पर जो प्रोविजन मेंटेन करनी है क्वेश्चन नंबर 13 के केस में दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर। सो काइंडली फटाफट से कंफर्म कर दीजिए, काइंडली फटाफट से कंफर्म कर दीजिए आपको यहाँ पर प्रोविजनिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो कवर हो गए आपके, क्लियर हो गए या नहीं हुए, क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, वो आना ही आना है। ठीक है, तो काइंडली फटाफट से बता दीजिए कि आपको ये पार्ट जो है वो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ओवरऑल प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो ओवरऑल जो प्रोविजन कवरेज रेशियो होती है वो कितने परसेंटेज बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ती है, प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक्स को कितने परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ती है, इट इज 70%। जो पीसीआर रेशियो होती है मिनिमम 70% मेंटेन करनी होती है, इट इज 70% ओवर हियर। अभी यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन बायर व्हिच इज सर्व्ड बाय अ क्रेडिट डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 15 over here it says which of the following is not a purpose of the protection buyer which is served by a credit derivative over there. Diversification of credit risk, hedging against credit risk, transfer of credit risk without transfer of credit asset, better portfolio management by reducing the concentration in market over there. तो यहां पर कौन सा यहाँ पर पर्पस जो होता है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर का सॉल्व नहीं होता क्रेडिट डेरिवेटिव के थ्रू, वो कौन सा पर्पस जो है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं होता है प्रोटेक्शन बायर के लिए। Which of the following will be the right answer? Question number 15 over here. Question 15 over here. So it is what? It is diversification. देखिए जब आप क्रेडिट डेरिवेटिव को परचेज करते हो तो क्यों परचेज करते हो, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, क्रेडिट रिस्क को अपने यहां पर अपने पोर्टफोलियो से उठा करके किसी और के पोर्टफोलियो में रखने के लिए आप यहां पर डेरिवेटिव को परचेज करते हो। क्या लेकिन आपका यहां पर लोन डाइवर्सिफाई होता है? नो, लोन तो डाइवर्सिफाई होता ही नहीं है, तो ये पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। Question number 15, option A is the right answer. Next question it says, credit default swap, the reference obligation can include. तो reference obligation में क्या चीजें हो सकती है, reference loan obligation में यानी कि जो asset reference asset होगा उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, debt security हो सकती है, loans to corporate हो सकते हैं, loan to bank हो सकते हैं, loans to sovereigns हो सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें यहां पर शामिल हो सकती हैं जब यहां पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की सीडीएस के बारे में बात की जाती है, जब यहां पर सीडीएस के बारे में बात की जाती है तो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो ये चारों ही चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। 4 of the above can be added, so option D would be the right answer. Option D over here would be the right answer in this regard. Question number 17 it says which of the following are not customers requirement from the bank। कौन सी चीजें कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेटिस्फैक्टरी सर्विस चाहिए तो चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंट सर्विस चाहिए, एमबीएस अच्छी हो ना हो मैटर नहीं करता, चाहे लोग आकर रोलर डालते हैं लेकिन एज सच मैंडेटरी नहीं है। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ अ बैंक व्हिच हैज शोन डिटेरियोरेशन व्हिच रिस्क हैज अराइजन। तो यहां पर क्रेडिट क्वालिटी जो है क्रेडिट पोर्टफोलियो की वो यहां पर डिटेरियोरेट हुई है,
क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट पोर्टफोलियो की डिटेरियोरेट, ये तो कौन सा रिस्क है? क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, बेसिस रिस्क, कौन सा रिस्क यहां पर रहेगा? क्रेडिट क्वालिटी कम हुई है पोर्टफोलियो की तो कौन सा रिस्क रहेगा? इट विल बी द क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, जिसको हम डाउनग्रेड रिस्क भी कहते हैं. वी आल्सो से इट टू बी द डाउनग्रेड रिस्क ओवर देयर. तो ऑप्शन ए जो है यहां पर, दैट विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए वुड बी द right answer in this regard. Option A is the right answer. Question number 18 over here. Next question, it says a bank has found the home loan portfolio very remunerative and has granted a major chunk of its loan to the home loan portfolio. As a part of the credit risk, the bank is exposed to default risk, credit risk or downgrade risk, systemic risk or intrinsic risk, कंसंट्रेशन रिस्क ओवर देयर. तो कौन सा रिस्क यहां पर इंपोज्ड है क्वेश्चन नंबर 19 के केस में? अगर एक बैंक जो है उसने मेजर चंक जो अपना सैंक्शनिंग का वो होम लोन्स में कर रखा है, तो बैंक के ऊपर कौन सा रिस्क इंपोज होगा? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट. जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर पोस्ट कीजिएगा. तो यहां पर आंसर आया है सुच की तरफ से एंड मिलन जी की तरफ से. तो यहां पर ऑप्शन डी जो है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज अ कंसंट्रेशन रिस्क. देखिए डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? जब पार्टी डिफॉल्ट कर दे, पैसे वापस ना करे, वो डिफॉल्ट रिस्क है. जब आपके पास लोन की पोर्टफोलियो की क्वालिटी डाउनग्रेड होगी तो आपके पास डाउनग्रेड रिस्क है, या फिर क्रेडिट सेपरेट ऑप्शन, क्रेडिट सेपरेट रिस्क है. जब आपके पास पूरी की पूरी इकोनॉमी में फेलियर चल रहा है, उसकी वजह से रिस्क इंपोज होता है, तो उसे इंट्रिंसिक रिस्क या फिर सिस्टमिक रिस्क कहते हैं. ठीक है, तो उसे सिस्टमेटिक रिस्क या फिर हम इंट्रिंसिक रिस्क कहते हैं. ठीक है, तो ये कौन सा रिस्क है? दिस इज कंसंट्रेशन रिस्क. जब आप एक ही तरह के पोर्टफोलियो में लेंडिंग करते जा रहे हो तो कौन सा रिस्क इंपोज होता है? दैट इज अ कंसंट्रेशन रिस्क ओवर देयर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेज credit linked notes or credit default swaps are used in which of the following types of securitization? तो क्रेडिट लिंक्ड नोट्स का इस्तेमाल एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का इस्तेमाल किस तरह की सिक्योरिटाइजेशन के केस में होता है? इन व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्रेडिट लिंक्ड नोट्स या फिर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का इस्तेमाल होता है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटाइजेशन या फिर एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन. तो एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन के केस में सीएलएन का एंड सीडीएस का इस्तेमाल होता है. CLN and CDS का इस्तेमाल होता है इन केस में. ओके, नॉट अदर देन दैट. फर्दर क्वेश्चन नंबर 21, इट सेज the transaction in which the financial securities are issued against the cash flow generated from a pool of the loan assets is called what? The transaction in which the financial securities are issued, जहां पर financial securities जो है वो इशू की जाती हैं against the cash flow generated from a pool of loan assets over there, उसको क्या कहते हैं? फैक्टरिंग कहते हैं, फॉरवर्डिंग कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, टेक आउट फाइनेंसिंग कहते हैं. व्हाट इट इज? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? इट इज सिक्योरिटाइजेशन. प्रोसेस बताया था ना, एसेट बैक यहां पर हो गई, यहां पर एसेट्स आपके पास डिफरेंट, इसके बेस पर एक एसपीवी को सेटअप किया गया, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटअप किया गया, जो कि आगे पास थ्रू सर्टिफिकेट्स या फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को इशू करेगा. इनकी रेटिंग की जाएगी एंड इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. एंड यहां पर ओरिजिनेटिंग बैंक जो होगा ना, यानी कि जिसको ये एसेट बिलोंग करते थे, वो अलग बैंक होगा, उसने सेल कर दिए यहां पर किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को. तो आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी. तो यहां पर तस्लीम एंड विष्णु जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 21. दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर इज अ राइट आंसर. एंड आल्सो मिलिंद हैज आंसर करेक्टली ओवर हियर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 21 ओवर हियर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. क्वेश्चन नंबर 21 ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 22 ओवर हियर, इट सेज which of the following represents an off balance sheet replication of the financial assets such as a loan or bond? तो कौन सी यहां पर जो डेरिवेटिव है, कौन सा डेरिवेटिव जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट करता है? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि जो फाइनेंशियल एसेट है उसको ऑफ बैलेंस शीट में रेप्लिकेट किया गया किसी और पर्सन के पास. टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 ओवर देयर. तो देखिए कौन सी चीज होती है? दैट इज अ टोटल रिटर्न स्वैप. आपको बताया था ना, यहां पर ये प्रोटेक्शन बायर है एंड फर्दर यहां पर क्या प्रोटेक्शन, मेरे पास एसेट है, रेफरेंस एसेट है वो है, एंड फर्दर यहां पर मेरे पास प्रोटेक्शन सेलर है, यहां पर प्रोटेक्शन सेलर है. अब जो भी एक्चुअल में रिटर्न आएगी इस एसेट के ऊपर, टोटल रिटर्न, वो यहां पर प्रोटेक्शन बायर जो है टोटल रिटर्न दे देगा. किसको? प्रोटेक्शन सेलर को दे देगा. प्रोटेक्शन सेलर जो है वो किसी ना किसी बेंचमार्क के बेस पर, यानी कि जैसे लाइबोर हो गया, उस पे बेस पर कुछ ना कुछ स्प्रेड रखते हुए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्प्रेड रखते हुए यहां पर पे करता रहेगा. किसको? प्रोटेक्शन बायर को. तो अल्टीमेटली चाहे यहां पर क्रेडिट डिफॉल्ट हो, चाहे यहां पर इंटरेस्ट रिस्क हो, चाहे यहां पर मार्केट रिस्क हो, सारे के सारे ये जो रिस्क होते हैं ना, ये सारे के सारे कवर हो जा रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में. दैट इज पर्टिकुलरली टोटल रिटर्न स्वैप. तो यहां पर प्रोटेक्शन सेलर के पास एक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा,
फॉर दिस पर्टिकुलर एसेट ओवर देयर, ओके, जो यहाँ पर इस एसेट के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, दिस इज अ टोटल रिटर्न स्वैप। सो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द राइट आंसर। देखिए यहां पर सीडीएस के केस में भी यही होता है, सीडीएस के केस में भी होता है, लेकिन यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो यहां पर रिस्क होता है ना, उसके रिलेटेड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्रिएट होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेटेड क्रेडिट जो आपके पास ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है वो क्रिएट होता है, पूरी की पूरी रिटर्न के लिए आपके पास कोई भी एक्सपोजर क्रिएट नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज मोर एप्रोप्रिएट एंड दैट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इट इज द सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहां पर क्या क्या चीजें शामिल है, सारी की सारी चीजें शामिल है, तो यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना, आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT and start preparing for the same। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.